Hello everyone, welcome yet again to another video lecture. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. Today I am here with the topic motions of the earth. Now this is from your class 6 geography portion. So let us quickly begin and understand what this chapter is talking about. First of all, we will be dividing this chapter into two parts. That is, first we will be covering about the rotation aspect of the chapter, and then in the second part of the chapter will be, or the second part of the lecture we will be covering the revolution part. Okay. So now what this chapter is dealing with or talking about, that is how about the different movements of the earth, that is motion of the earth. Alright, so as you can see, motions of the earth. Introduction, that is, in the morning we would have seen the sun, that is, we all know, rises in the east, and in the evening it sets in the west. So east में rise होके sun, west में set होता है. Now it seems as if सन ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ. तो हमें देखने के लिए ऐसा लगता है कि सन अर्थ के अराउंड ट्रेवल कर रहा है, बट द फैक्ट इज अदरवाइज. बट ये इसका जस्ट अपोजिट है. दैट इज, इट इज द अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यू मस्ट हैव गॉट दिस एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. सो एक्चुअली ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पता पड़ता है दैट इज एक्चुअली द ट्रेन मूव्स ऑन एंड ऑल थिंग्स अराउंड लाइक पोल्स, ट्रीज जो पास होते हैं एक्सेट्रा स्टेशनरी. बट हमें फील ऐसा होता है कि दे आर मूविंग एंड वी आर स्टेशनरी. But you feel as if you and your train are stationary and the things all around you are moving. This is the very myth puzzled the astronomers for a very long time. Ultimately, it was discovered by scientists like Galileo, Copernicus, etc. that the sun is stationary actually and all the planets are revolving around the sun. Sun is stationary and the earth is moving. It was a great discovery which greatly revolutionized our geographical knowledge and led us to the path of progress. Besides moving around the sun or around the sun, our earth also moves on its own axis. So thus the earth has two kinds of motion, that is two kinds of motions which the earth has and which we will be looking at. One on its axis, that is the earth, this is the axis if we say. So the earth moves on its axis, it moves on its axis, and apart from that it moves around the sun. If this is the sun, then it moves around the sun as well, which we call rotation, and then revolution are the two motions which we will be looking at. Okay. Now the first one, as you can see in the figure also, that is the image, the inclination of the earth axis and other things. So first we will be talking about is rotation. Alright. So now the earth spins on its own axis like a top. आपने कभी लट्टू चलाया होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने जब लट्टू चलाते हो तो वो एक सिंगल पॉइंट पे घूमता रहता है. ओके, सो वैसी अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. नाउ दिस इज अर्थ, एज यू कैन सी, दिस इज द एक्सिस व्हिच वी हैव डिवाइडेड. दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर. ऑलराइट, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. द इंक्लिनेशन इज 66.5 डिग्री, जितना टिल्ट है उसका. ओके, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप. The Earth's axis is an imaginary line. तो ये कोई actual line नहीं है अर्थ पे, ये एक imaginary line है जो हमने create करी है for us, for our own understanding. Line that passes through its center, both ends कौन से इसके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो ये जो रेड में दिए वो आपकी एक्सिस है. नाउ दिस एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. तो ये जो प्लेन है, ठीक है, ये वाला, that is 66.5 degree. Alright. The earth completes one rotation on its axis in roughly 24 hours. It is because of the earth's rotation that the sun seems to us to be rising and setting. तो because earth अपने खुद के एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है तो हमें ऐसा लगता है कि सनसेट भी हो रहा है और सनराइज भी हो रहा है. When the earth moves on its axis, half of the surface, अगर हम यहाँ पे सन माने तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, यहां पे सनलाइट पड़ रही है तो दिस विल ऑल रिप्रेजेंट डे, और इसके पीछे जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट नाइट. सिमिलरली जब अर्थ घूम के इधर आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन पे लाइट होगा तो वो डे होगा और पीछे वाले पोर्शन पे नाइट होगा. सो फेसेस द सन एट अ टाइम व्हाइल अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन. एज अ रिजल्ट इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, तो जो पार्ट सन को फेस कर रहा है अर्थ का, वहां पे डे होगा, और जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा है, पीछे है, वहां पे नाइट होगी. So as a result, in that part of the earth receives sunlight and it is day, while the other part is night. जैसे इंडिया में अभी डे है, ठीक है, एंड इसी टाइम पे अमेरिका में नाइट होगी. This phenomena
of alternating day and night is the result of the Earth's movement on its axis. तो ये alternate जो फिनोमिना है वो किसके कारण है? आपकी अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. We call this movement rotation. इस मूवमेंट को आप रोटेशन कहते हैं, which is completes in 24 hours roughly or in 1 day. Okay. Suppose if the Earth, अगर अर्थ घूमना बंद कर दे या घूमे ही नहीं तो क्या होगा? तो वो भी हम यहां पे देख लेते हैं. तो एक पोर्शन में तो कंटिन्यूस सनलाइट पड़ती रहेगी और एक जो पोर्शन है उसमें कंप्लीटली डार्कनेस रहेगी. ओके, सो सपोज इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, देन वन हाफ ऑफ इट्स पार्ट वुड बी परमानेंटली इन लाइट, हमेशा लाइट में रहेगा, सनलाइट में, while the other half would have perpetual darkness, तो हमेशा डार्कनेस में रहेगा. Thus it is because of the rotation of the earth that days and nights are caused. तो days and night किसके कारण हो रहे हैं? आपके रोटेशन के कारण. And they follow each other in all parts of the earth. The earth moves from west to east. तो अर्थ का मूवमेंट क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसका मूवमेंट है. It is also because of this movement or rotation of the earth that the sun, the moon and stars appear to us if they move round the earth फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ऐसा हमें लगता है क्योंकि अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए हमें उनका जो सन है, मून है, स्टार्स का मूवमेंट हमें ईस्ट टू वेस्ट लगता है. नाउ बोथ इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग द रेज ऑफ सन आर स्लांटिंग. ठीक है, क्योंकि सन इज नॉट ओवरहेड, दे फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ हीट सनलाइट कम होगा. सो देयर इज लेसर हीट ड्यूरिंग दीज टाइमिंग्स, दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग. बट एट नून व्हेन द सन इज ऑलमोस्ट ओवरहेड, द रेज ऑफ द सन are more or less vertical on us. They fall on a smaller area and make it very hot. So noons, that is during the afternoon, are comparatively hotter as compared to both mornings and evenings. तो आपके दिन जो है वो गर्म होते हैं, सुबह और शाम एक्चुअली थोड़े कम गर्म होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर हाउ आर डेज एंड नाइट्स कॉस. कैसे डेज एंड नाइट्स कॉस हो रहे, तो हमने वही देखा अभी. बिकॉज अर्थ का जो एक्सिस है इज इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट एट 66.5 डिग्री. द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड टू वन साइड. तो अर्थ, अभी हम इस डायग्राम में भी देखेंगे कि एक टिल्टे है उस पे वन साइड पे, व्हाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. देखो, अब अर्थ अपने इस पे भी, जैसे इसको हम अर्थ माने तो ये अपने इस पे भी घूम रहा है और प्लस ये ऐसे भी घूम रहा है, तो इसके दो मूवमेंट साथ में चल रहे हैं. ठीक है, दैट इज इट इज मूविंग on its axis as well, ये जो एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, और प्लस अगेन एट द सेम टाइम इट इज मूविंग अराउंड द सन एज वेल. अगर हम यहां पे बीच में सन मान ले तो ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं उसके. ओके, सो tilted to one side while it revolves around the sun. This tilt is called the inclination of the earth's axis, which is again inclined in the same direction. As a result, one hemisphere of the earth leans towards the sun for 6 months and the other is away from the sun. Now during this period, greater area of this hemisphere receive sunlight for a longer time. Thus the days are longer there in one hemisphere, while in the other hemisphere the days are shorter and the nights are longer. Hence when the days are longer in northern hemisphere, nights are longer in the southern hemisphere. तो just opposite होगा. अगर days लॉन्गर है, आपके दिन बड़े हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसका मतलब यह है कि नाइट्स जो रातें हैं वो लंबी होंगी कहां पे? सदर्न हेमिस्फेयर में. और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब डेज सदर्न हेमिस्फेयर में बड़े हैं तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नाइट्स बड़ी होंगी या लॉन्ग होंगी. एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months व्हेन नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द डेज आर लॉन्गर इन द सदर्न हेमिस्फेयर. रिमेंबर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज इंक्लूडिंग इंडिया, June 21st is the longest day and December 22nd is the shortest day. So these are the two dates, okay, when is the shortest day in northern hemisphere and the longest day in northern hemisphere. All right, now moving further, now if you can imagine, if the earth's axis was really perpendicular to the plane of the earth's orbit instead of inclining, अगर incline नहीं होता तो in such a situation क्या हो सकता था? that is there would be नाइट्स एंड डेज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन सब जगह. ठीक है, दैट इज जो नाइट होगी और प्लस जो डे होगा वो इक्वल ड्यूरेशन को होगा दोनों जगह. अब यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका जो एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है. अब ये पोर्शन जो है यहां तक
बेसिकली इज रिसीविंग सनलाइट बिकॉज सन इज हियर, तो ये यहां तक के पोर्शन को आपको सनलाइट मिल रही है। बट अगेन अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, दैट इज दिस इज नॉट टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द सन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो अवे है सन से, तो उसमें वहां पे नाइट होगी। ऑलराइट, अगेन बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर होता तो आप ये देखो यहां पे इक्वल डिस्टेंस ऑफ सनलाइट यहां पे मिलती और यहां पे डार्क होता, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इक्वल ड्यूरेशन दोनों हेमिस्फेयर्स में मिलता हमें। मोर ओवर देयर वुड बी ओनली 2 सीजन, तो सिर्फ 2 ही तरह के सीजन होते, दैट इज समर एंड विंटर, अगर परपेंडिकुलर होता अर्थ एज सच, इट वुड नॉट, अगर वो टिल्ट नहीं होता अपने एक्सिस पे तो। ओके, नाउ रिमेंबर द डेज एंड नाइट्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल लेंथ एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे वो इक्वल लेंथ रहेंगे बिकॉज थ्रू आउट द ईयर द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। नाउ सन जो है वो इक्वेटर पे तो वर्टिकल रहता ही है हमेशा, दिस इज द लाइन जो आपकी वर्टिकल वाली ये है, ठीक है, दैट इज इक्वेटर। बट अगेन वी नो दैट सन का मूवमेंट टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है। सो एट दैट टाइम अगेन व्हेन इट इज टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पे डेज बड़े हो जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली साइड में डेज उस टाइम पे शॉर्टर हो जाएंगे। और ऐसे अपोजिट हो जाएगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ सन रहेगा, दैट इज वर्टिकल रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है डेज शॉर्टर हो जाएंगे। सो द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स इंक्रीज और डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, आइदर साउथवर्ड्स और नॉर्थवर्ड, या तो हम साउथवर्ड्स मूव करते हैं या नॉर्थवर्ड मूव करते हैं। नाउ ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम मार्च 21st to September 23rd, the North Pole receives sunlight for almost continuously 6 months, while on the South Pole there is the sun shines continuously for the other next 6 months. In this way, at the poles there are days and nights of 6 months duration each. तो जो आपके पोल्स है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अगेन विल बी 6 मंथ्स यहां पे कंटिन्यूस डे रहेगा और 6 मंथ्स कंटिन्यूस नाइट रहेगी। सिमिलरली यहां पे भी वही सिचुएशन होगी। ऑल राइट, अब इसके बाद हमारा ये इक्विनॉक्स वाला पोर्शन हम देख सकते हैं, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। अगेन योर इक्विनॉक्स, सो नाउ दिस रिप्रेजेंट्स आवर सन हियर, राइट, एज यू कैन सी ये सन हो गया आपका। नाउ ये अर्थ का मूवमेंट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऑल राइट। नाउ एज यू कैन सी दिस इज शोन एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ which is revolving around the sun. All right. Now it makes equinoxes as well as your the solstice. Now first we'll be looking at the equinox. Now equinox का मतलब ये है कि basically equal amount of sunlight is received. All right, in both the hemispheres. So when sun is here, that is on the 21st of March. ठीक है, तो equal amount of sunlight is received on the both hemispheres. Now when the earth moves towards June, that is on 21st of June, there will be summer solstice in the northern hemisphere, that is northern हेमिस्फीयर में समर रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर रहेगा। अब अगेन अर्थ इज मूविंग हियर फर्दर, तो आपका ऑटोनोमल इक्विनॉक्स आएगा, तो अगेन नॉर्दर्न में उस टाइम हेमिस्फीयर में ऑटम है और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे स्प्रिंग है, एंड दिस डेट इज 23rd September. Now as earth moves further, another solstice will come, that is now for northern hemisphere this solstice is known as winter solstice. तो winter solstice का मतलब यह है कि northern hemisphere में आपके winter है, that is what we experience during December, 22nd December in India we experience winters, और southern hemisphere में उस टाइम पे summers है। Now further again earth का movement ये वापस यहाँ पे आ रहा है, तो वो again equinox पे आ जाएगा, ठीक है, that is again 21st of March, जब northern hemisphere में spring है और southern hemisphere में उस टाइम पे autumn है। ऑलराइट, तो ये आपका रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स जिसके कारण कॉज होते हैं। अगेन मूवमेंट ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन। सो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन 21st of March एंड 23rd of September। तो दोनों इसमें 21st March और 23rd September में डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे दोनों जगहों पे, दैट इज दोनों बोथ द हेमिस्फीयर्स। And because of these 2 days, neither of the 2 poles is inclined towards the sun, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी पोल सन की तरफ इंक्लाइन नहीं है, and these days are called equinoxes, तो इनको ही इक्विनॉक्स हम कहते हैं। All right, okay, so this is for today's lecture, and we'll be taking up the next part, that is revolution, in the next part of the lecture. Thank you so much.